Hello everyone, welcome to Quick Concepts videos in physics. And today we'll talk about the vector analysis of projectile motion. शुरू करते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है जहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्टाइल को लाइक एनी पार्टिकल को थीटा एंगल पे मैंने थ्रो किया है विद एन स्पीड u, ठीक है. एंड सपोज द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इज a एंड द लैंडिंग पॉइंट इज b. ओके, तो और कहीं O पे ये मैक्सिमम हाइट में बोल देता हूँ कि O पे मैक्सिमम हाइट इसकी अटेन हुई. एंड अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव H एंड R and T and that is too trivial. Okay, so this is not like why we are here. So it has been thrown from point A, it lands at point B. The things that I'm going to ask you are like this. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पूछूं कि यार अगर ये लैंडिंग पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है, तो क्या अल्फा थीटा के बराबर होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा? अगर आप बोलते हो कि बराबर होगा तो कैन यू प्रूव इट? ओके, सो दैट्स वन थिंग. द सेकेंड वन, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट any general point Q and any other general point R, where Q is a point before the maximum height and R is a point after the maximum height point. Okay, so what is happening to the motion? Like you can talk about the kinetic energy or the vertical speed or horizontal speed beyond point O, so that means at any general point Q, and what is happening to the motion? That means you have to do the motion analysis after point O. Okay, again things are going to be different beyond like before O and after O. Okay, so let's discuss them. First of all, I'm going to derive if this alpha is going to be same as theta or not. Okay, so you should be able to see कि यार इसका जो horizontal speed है projectile में, horizontal speed इसका change नहीं होता because it is going to be u cos theta. Right, this is the initial horizontal speed, and since there is no acceleration, so ax is equal to 0, so speed is not going to change in x, you can say, or you can say vx will be constant, velocity in x is going to be constant, and so again the modulus is also going to be constant. Okay, so at any point in time or any point in space, the horizontal speed is always going to be u cos theta, or horizontal velocity is always going to be u cos theta. Okay, so b पे भी वही होगा तुम्हारे पास, इसका जो horizontal speed होगा, so at b vx, let's say at b the velocity is v, so vx is going to be u cos theta. Okay, now we want to find what is the vertical speed at b. vertical speed कैसे निकालेंगे यार? vertical speed निकालने के लिए I'm going to use the time period. टाइम अपने पास क्या है? 2u sin theta by g, ये तो सबको पता होगा, ठीक है. तो टाइम अपने पास 2u sin theta by g, दैट मीन्स कि a से b जाने में इसको इतना टाइम लगता है. सो लेट्स फाइंड आउट द वर्टिकल वेलोसिटी एट पॉइंट b. सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज v इज इक्वल टू u प्लस at, ये वाला इक्वेशन लगाऊंगा मैं. एंड फॉर y, so this is going to be vy is going to be uy plus ayt. Again I'm doing the motion in two parts, x and y, so I'm talking about vy is equal to uy plus ayt. I don't know vy. Okay, and I'm taking upward positive, downward negative, right hand side positive and left hand side negative. It's very trivial here. Okay, so ui is what? Ui is u sin theta, ये भी सबको पता होगा. So this is going to be u sin theta. And what is ay? Acceleration in vertical direction is basically g, and since g is downward and here I'm taking downwards negative, so this is going to be minus g. और टाइम कितना है भाई? मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ फॉर a टू b के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को a पे वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी मेरे को चाहिए, ठीक है. सो u माइनस at, a इज माइनस g, आई एम टेकिंग डाउनवर्ड नेगेटिव, एंड t इज हाउ मच? 2u sin थीटा बाई g, जो मैंने टाइम अपने बेसिक डेरिवेशन से यहाँ पे लगा दिया. ये कितना आ जाएगा? u sin थीटा, ये g कैंसिल आउट, ठीक है. u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा, ये कितना हो जाएगा? माइनस u sin थीटा. ओके, सो एट पॉइंट b my vx is already what? u cos theta, and my vy is coming to be minus u sin theta. and माइनस यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भाई वो नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर को मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, नीचे को मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है, डायरेक्शन वाइज, वेक्टर डायरेक्शन वाइज. ओके, सो माइनस u sin theta is basically saying that your velocity, vertical velocity at point b is downward and the value is minus u sin theta. So let's draw these vectors. So we have this vx and vy is something like this. Okay, and suppose my net velocity is like this. Okay, and I'm going to assume that angle is alpha as given in the problem. Okay, so how do I find alpha? alpha निकालने के लिए मैं सीधे सीधे tan alpha निकाल सकता हूँ. tan alpha कितना हो जाएगा यार?
tan अल्फा के लिए मेरे को ये चाहिए, दिस डिवाइड बाई दिस थिंग, एंड दिस इज vy. So I'm just going to write vy by vx, and again I'm talking about this acute angle alpha, so this has to be in modulus because tan alpha is going to be positive, so I'm going to take modulus of the right hand side. Again क्यों कर रहा हूँ मैं, अल्फा मेरा एक acute angle, so tan alpha obviously is going to be positive again, and vx vy as a vector they can bring some negative sign again, so I have to take the modulus just to make sure कि मेरा जो रेशियो आ रहा है ये पॉजिटिव, सो tan alpha यहाँ पे कितना हो जाएगा vy by vx, ठीक है, और vy कितना है, vy है तुम्हारा माइनस यू साइन थीटा, और vx कितना है तुम्हारा u cos थीटा। अगर मैं इसका मॉड लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा tan थीटा का मॉड, सो tan अल्फा इज गोइंग टू बी tan थीटा का मॉड, एंड आई नो यहाँ पे अगर मैं माइनस माइनस मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, हटा दिया मैंने, तो tan थीटा मॉड इज tan अल्फा, दैट मीन्स यहाँ से मैं रिड्यूस कर सकता हूँ थीटा हैज़ टू बी इक्वल टू अल्फा। अगेन यहाँ पे थीटा तो अपने को पता ही है ना, थीटा तो यहाँ पे एक्यूट है, तो tan थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। सो आई कैन से हियर कि थीटा इज गोइंग टू बी अल्फा, जिस एंगल से मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसने जो एंगल बनाया हुआ है ना, जब ये लैंड करेगा तब भी उसके पास उसने हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक एंगल वाली सिनेरियो। अब मैं पूछूं कि यार अब बताओ कि ये ओ से पहले मोशन क्या हो रहा है, मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तुम ये देखो यार कि इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कभी चेंज नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो रही, like before point O the vertical acceleration is always again is g downward, and उससे पहले इसका जो velocity है ना, उसका velocity क्या है, upward है, ठीक है, vertical velocity upward है, acceleration downward है, so इसका जो vertical velocity होगा उसका जो mod होगा वो कम होते जाएगा। so before point O the vertical velocity's mod or the vertical speed you can say is decreasing. What happens at O कि इसका vertical velocity इसका 0 हो गया और इसके पास बस एक ही velocity बची है, वो horizontal velocity, let's call it u dash, और u dash की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी u cos थीटा, जो उसके पास ये horizontal बची हुई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो vy है यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 हो चुका है, तो यहाँ से A से O जो वर्टिकल वेलोसिटी है कम होते होते 0 हो गई, इसका मतलब मैं A से O में बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। O से भी अब O पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलेरेशन अभी भी g है, तो अब क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी फिर 0 से स्टार्ट होना शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, जो फाइनल अपने को वर्टिकल वेलोसिटी मिली है u sin थीटा, ठीक है। मॉडल्स की बात करूँ तो वो u sin थीटा उसका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर O से भी ये क्या हो रहा है, इसका ke मैं बोल सकता हूँ इसका बढ़ रहा है। कैसे यार, देखो यहाँ पे जब मैं ke की बात करूँ, इनिशियल ke की बात करूँ, तो ये हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर। अगर मैं ke एट मैक्स की बात करूँ, सो ke एट a ये हो गया, ke एट o मैक्स की बात करूँ वो कितना हो गया, हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगेन ke एट b इज गोइंग टू बी हाफ m u स्क्वायर, क्योंकि अगर यार वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, इसका मैं मॉड निकालूंगा तो फिर इसमें वो क्या आएगा u आएगा। अगर स्पीड नेट स्पीड निकालूंगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। सो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है यार, कम हो रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो दिस इज हैपनिंग टू द काइनेटिक एनर्जी, इट्स डिक्रीजिंग एंड देन इट्स इंक्रीजिंग, ओके। तो ये काइनेटिक एनर्जी वाली बात होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी कहाँ पे होगी, ए और बी पे होगी, मिनिमम जो होगी वो कहाँ पे होगी, ओ पे होगी। अब इसमें एक और मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यार तुम बताओ कि भाई किसी भी जनरल पॉइंट पे या किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो ये मैं करने वाला हूँ नहीं, मैं आपको इक्वेशन बताऊंगा एंड अगेन यू आर गोइंग टू फिगर इट लाइक योरसेल्फ आउट, ओके। सो सपोज आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट r। तो मैं r पे में वो क्या करना है, r पे मैं पहले एक पोजीशन वेक्टर बना देता हूँ। पोजीशन वेक्टर कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, सो लेट्स कॉल इट r द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो मेरी कैसे दिखेगी यार, वेलोसिटी मेरी कुछ ऐसे दिखेगी, वेलोसिटी दिखेगी कुछ ऐसे, ठीक है। ये मेरी वेलोसिटी है और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, मैं r को मैं आगे सबटेंड करूँ, सो दिस एंगल कॉल इट बीटा, बीटा विल बी द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर। सो मैं थोड़ा सा इसको साइड से छोटा सा ऐसा करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो ऐसे तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर होगा और आगे से तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। ये जो एंगल बीटा होगा, ये अभी दिख रहा है ऐसा 90 जैसा, वो क्योंकि मेरा लाइक ड्राइंग मेरी गंदी है, ठीक है। सो दिस बीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द r वेक्टर। सो हाउ डू यू फाइंड दिस एंगल, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास कोई वेक्टर है a वेक्टर और कोई वेक्टर है b वेक्टर, इन दोनों के बीच में अगर एंगल निकालना तो मेरे पास एक फॉर्मूला है ना यार, cos थीटा। ये तो वेक्टर्स आप लोगों को पता होगा, a डॉट b डिवाइड बाई a मॉड एंड b मॉड। तो यहाँ पे अगर मेरे को cos बीटा निकालना है,
कॉस बीटा निकालना है तो क्या करना होगा, पोजीशन वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाई पोजीशन वेक्टर मॉड वेलोसिटी वेक्टर मॉड। अगेन तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है, आर मेरे को निकालना है, वी निकालना है, तो ये मैं सिंपली मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ये तो बहुत ही सिंपल है। आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के लिए तुमको आर एक्स चाहिए और ठीक है फिर तुम्हें आर वाई चाहिए, वैसे ही तुम्हें वी के लिए क्या चाहिए, वी एक्स चाहिए प्लस वी वाई चाहिए, ठीक है। सो आर एक्स कैसे निकालूंगा मैं, आर एक्स सिंस देयर इज नो ए एक्स, सो आर एक्स कितना हो जाएगा, आर एक्स इज गोइंग टू बी यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। आर वाई कैसे निकालूंगा मैं, आर वाई निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर, वो फॉर्म लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये मेरा आई में हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा जे में, ठीक है। वैसे ही मेरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट होने वाला है, सो इट्स गोइंग टू बी यू कॉस थीटा आई, एंड वर्टिकल वेलोसिटी के लिए क्या लिखूंगा मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला इन द वाई डायरेक्शन, सो इट्स गोइंग टू बी यू साइन थीटा v इज इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी जी। अगेन ये मैंने कहाँ से निकाला यार, ये मैंने बेसिकली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया हुआ है, एक बार x के लिए लगाया, एक बार मैंने y के लिए लगाया, कीपिंग इन माइंड कि a इन x इज 0 राइट एंड a इन y इज g डाउनवर्ड, सो डाउनवर्ड मैंने नेगेटिव लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस जी लिखा है, ठीक है। तो ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया फुल और यहाँ से मेरे पास एक आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में तुम्हें टाइम दिया होगा, ठीक है, टाइम दिया होगा तो यहाँ पे तुम्हें एक प्रॉपर वेक्टर मिल जाएगा, यहाँ पे भी तुम्हें प्रॉपर वेक्टर मिल जाएगा और यू वगैरह भी तुम्हें एंगल वगैरह भी दिया होगा। सो अगेन यू हैव दिस v, यू हैव दिस r वेक्टर, you can just plug those values in this particular formula and find your cos beta, and then beta is going to be cos inverse r dot v divided by r mod v mod. So ऐसे हम किसी भी इंस्टेंट पे पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का वेक्टर एनालिसिस, सिंपल सा, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी बन सकते हैं, बट बेसिक फंडामेंटल अगर तुम्हें ये सब पता है तो आई थिंक यू कैन फिगर इट आउट लाइक मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हियर, ओके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।